are you? I hope there's no echo now. I'm not wearing any headphones. I don't have any of the other speakers on as well. Speakers, दूसरे headphones तार वाले. Hi, how are you? Oh, Soma, you're always the first one. I love that. Hi, how are you guys? Sakina, क्या हाल है आपका? Can you guys hear me now? अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? Perfect voice. Oh, good. अब आ रही है. Great. Kohor, क्या हाल है आपका? Okay, Sonia, if you can hear me. Now Sonia was using speakers. Sonia, don't use speakers. Speakers ना use करो, वहाँ echo आ रही है. Normal लगा के normal से बात करो, बिल्कुल I think नहीं आएगी. Hi, Suma, I love the fact that you're the first one. Ikra, क्या हाल है आपका? Shumad, I'm good. How are you? Good to see you guys. Good to see everyone. I hope हम लोगों को इस आवाज़ में लोगों को बोर करके वापस नहीं भेज दिया. But I'm glad that all of you guys are back. Really appreciate it. Good to see you. I see my friend Shazim is back as well. And I'm sure he's thinking of something smart to say to me right now. Shazim, I promise you, after this we're having a phone call. You can say whatever you want to me. Shazim is my childhood one of my besties. And, oh God, here we go. So, hi Kashif, how are you? From Ireland, right? Well, good to see you. We had an appointment with you a few weeks ago and then fly to Pakistan. Inshallah, jab this situation is theek ho jayegi, please aayega and I'll take care of you guys. And if you don't want to come, we're starting a new thing at HSY. हम लोग phone पे भी we're going to do video calls with all the people जो नहीं fly कर सकते, जो consultation मांग रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं. Frying chicken strips. Anto is listening to me live. Not that. Those one thing sounds great, which is frying chicken strips. I hope I'm not boring you. One show on men clothing. Sure, guys. Ivan here. Hi, Ivan. How are you? आपकी अम्मी कैसी हैं? अम्मी ठीक हैं. उनको दुआओं की ज़रूरत है इस वक्त, मगर वो ठीक हैं. Can you do cooking? Okay, I want to admit that I today with my one of the guys in my house, we actually made aloo. I didn't make anything. मैंने उसके अंदर सिर्फ अचार mix कर दिया था और कमाल हो गया था. I'm not considering myself a cook. Wait till everyone joins. I am waiting until everyone joins. आपका accent is really different. You stayed at England? नहीं, मैं बड़ा हुआ था अमेरिका में. But मेरा accent तो नहीं अच्छा. मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक है. What happened to your mom? अम्मी गिर गई थी पिछले गर्मियों में, स्लिप हुई थी बाथरूम में और तब से उनकी कमर में बहुत चोट है. सलाम फ्रॉम UK. अस्सलाम वालेकुम जी. How are you? Please show turtle. Turtle यहाँ है नहीं. मैं लाहौर में हूँ अपनी अम्मी के साथ और turtle कराची में. Take my name, Duran. How are you? Hi Tanzila. How are you? Okay, hold on. Let me see if Sonia's back because I really hope that we can get her and we can chat. Sonia, where are you? Oh, hello, I'm Emmer. My friend Emmer's on. Guys, if you don't know Emmer, my friend Emmer is a great artist. He does some fantastic work. I have a beautiful painting in my house by him. So, hi, Emmer. Good to see you. How's Auntie now? Mama's okay. She's better, guys. She's not still here. Kohar, kya haal hai aapka? Good to see you. Sending duas from USA. Thank you, Faizan, I think. Thank you, guys. Hello, Saida from Manchester. Hello, Hassan from Lahore. Hi, guys. How are you? How are you and your mother? We're okay. Thank you. Where in the US? मैं बड़ा कहाँ हुआ था US में? New York में. Please, my regards to Auntie. Bahut shukriya. Thank you. I will tell her. It's different, but it's nice. In fact, you have an English accent, that's why. My sister grew up in the UK. She lived her entire life in the UK. I grew up in the USA. I guess मैं कहूँगा मेरा accent जो है वो cross Atlantic है. Cross Atlantic. It's my own accent. I also send the positive note. Thank you. I appreciate it. आपका favorite actor कौन है? बहुत ज़्यादा हैं. I love Fawad. I love Bilal. I love I love how Imad is doing. I love Mikal. There's so many. I love Ahad. I love Usman Khalid Bhatt. I don't know where to begin. Hi from Pakistan. Hello Nadeem from Pakistan too. Hassan, आप कैसे हैं? Good. Good to see you guys. Okay, so आप देख लें if Sonia's back on, so we can talk about what we really wanted to talk about, which is Sonia. अच्छा, कोई अगर ये नहीं जानता, मैं आपके बारे में अपने बारे में एक बात बताता हूँ. मुझे हर चीज़ के ऊपर कोई गाना आ जाता है. मैं पता नहीं क्या सा कर रहा हूँ. पुराना सा कोई 1970 से कोई गाना मुझे आ गया है. मुझे अम्मी को बहुत शौक है पुराने गाने सुनने का और मैं जब भी पुराने गाने सुन रहा होता हूँ मेरे दिमाग में वो फंस जाते हैं. So guys, I'm just waiting for Sonia to come on. Let me try again and see if she's there. Come on, Sonia. Oh, there she is.
Oh Sonia, This is insane. Oh my God. you know क्या कहते कभी हैं? कहते हैं, I don't know क्या कहते हैं about waiting or something. कहते हैं good things come to those who wait. And wait, since I yeah. waited so long, look at the good thing that came. My friend Sonia. Love you. ओके, तो सोनिया, हम किस चीज के तो बारे में बात, उससे यस, पहले, हाँ, अजी जी कहे, बताओ। अब बताएं, मैं कहती हम किस चीज के बारे में बात कर रहे थे, पता नहीं कहाँ बात हमारी। हाँ, नहीं, मैं तुमसे पहले ये पूछ रहा था कि तुम्हें याद है कि हमारी पहले कब मुलाकात हुई थी? हमारी आई थिंक आपके शो पे। बिल्कुल। और उसके बाद आपकी मेरी दोस्ती तब हुई थी जब अब एक अवार्ड शो हो रहा था और आप आए थे, और आपके लिए हम लोग कपड़े डिजाइन करके बना रहे थे, याद है आपको? यस, काला एक जोड़ा मैंने आई थिंक बनाया था। खोजी के साथ आई थी मैं आपके पास, यस, हाँ, आई रिमेम्बर, आई थिंक खोजी के साथ आई थी। हाँ, 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 बिल्कुल। खोजी बस दे। और हमने आपके लिए काला कोई आउटफिट मैंने बनाया था, आप कुछ और पहनना चाह रहे थे, मैं कह रहा था नहीं सोनिया आप यही पहनो, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप, बिकॉज आई थिंक शुरू शुरू में हर बंदा जरा डरा हुआ होता है अपनी पर्सनल स्टाइल निकालने से, और या हर बंदा एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि जो हर बंदा पहन रहा है, स्पेशली जो बड़ा स्टार पहन रहा है, दूसरा बंदा वही पहने। तो आप थोड़े से घबराए हुए थे, मगर मुझे पता चल रहा था कि नहीं, सोनिया के अंदर एक सेंस ऑफ स्टाइल है, उसका अपना है जो, और मुझे फौरन से अंदाजा हो गया था। सो एनीवे, मैंने आपको दिखाया और आपने कहा अच्छा शेरू आपका ख्याल है। मैंने कहा इस जैकेट के ऊपर ये जैकेट, के ऊपर ये, इसके नीचे ये पतलून, के नीचे ये। और आपने कहा अच्छा यू श्योर? मैंने कहा हाँ, और मैंने दे दिया। फिर मैं अवार्ड शो में बैठा हुआ था, मुझे याद है, मैं आई थिंक सारे बैठे हुए थे, आई थिंक मी, माहिरा वाज देयर, या सारे लाइक लाइन में बैठे हुए थे। और फिर आप थोड़े से लेट आए थे, स्टाइलो, नो। और लेट आए थे, और आप आए और आप सीधा फ्रंट रो के अंदर वॉक करते हुए आए, और मुझे याद है हम सारे बैठे हुए थे, हमने सबने इतना डबल टेक किया था, because you looked amazing. आई नो बिकॉज आई याद वाज आया? वेयरिंग यू, ऑफ कोर्स, No, no, it थैंक यू। wasn't that you were wearing me. नहीं नहीं, मेरे मेरे कपड़ों का कोई इसमें कमाल नहीं था, मैंने तो जोड़ तोड़ के मैंने कुछ नया चीज बनाई थी, मैं चाह रहा था। मगर कपड़े पहनने का जो अंदाज, जो सही अंदाज होता है ना, वो होता है कॉन्फिडेंस से पहनना, कि जैसे कि ये कपड़े नहीं अंदर आ रहे, आप अंदर आ रहे हो, और कपड़े एक आप आपका एक हिस्सा है, कपड़े पहले ना एब्सोल्युटली आए। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि उनके कपड़े जो होते हैं, बहुत स्टार्स ऐसे होते हैं, इतने बड़ी बड़ी पूफियां चीजें पहन लेते हैं कि लगता है कि उनके कपड़े कमरे में 15 मिनट पहले आए हैं, और जो स्टार है वो पहले बाद में आया है ना? बिल्कुल, और यू नो बीइंग अ डिजाइनर, ये बात आप कह रहे हैं तो ये बहुत अमेजिंग बात है। अदरवाइज डिजाइनर्स का तो यूजुअली ये एक उनकी प्रेफरेंस होती है कि हमारे कपड़े जो है वो ज्यादा हाईलाइट हो, रादर यू नो पर्सनालिटी के। तो ये आप ये बात करें बिकॉज आप खुद स्टाइल सेंस को बहुत ज्यादा जानते हैं, और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को भी बात जानने की बहुत जरूरत है कि वो यूजुअली लोगों को देख के कॉपी करना शुरू हो जाते हैं कि इसने ये पहना तो मैं भी यही पहन लूं। बहुत दफा बॉडी टाइप आपकी अलग होती है, आप पे हर चीज सूट भी नहीं करती, तो ये भी समझना बड़ा जरूरी होता है। पता है, थैंक यू। मैं जब मुझसे कोई स्टार्स के कपड़े मांगते हैं ना, मैं सबको यस नहीं कहता, बिकॉज मैं समझता हूँ कि किसी के स्टार या के यू पहनने डोंट, से आई नो। मैं सक्सेसफुल नहीं होऊंगा। किसी के हम्म, स्टार के पहनने से लोग ही नहीं कहेंगे ओ अच्छा स्टार ने पहना तो अब भाई HSY के पास जाएंगे, नहीं। मैं उनको देता हूँ जो मुझे लगता है कि उनके पहनने से ये कपड़े जिंदा हो जाएंगे, जिनके बिल्कुल। पहनने से उनकी पर्सनालिटी इन कपड़ों में आएगी और जिंदा हो जाएंगे। बिकॉज कपड़े हम्म, आपको एक हद तक स्टाइल दे सकते हैं, मगर स्टाइल असल में आपके अंदर कॉन्फिडेंस के अंदर, आप इट्स उसको योर, कैसे कैरी या करते हैं। एग्जैक्टली, इट्स योर सेल्फ। जो तुम दुबई में लग रही थी, आई डोंट नो तुमने किसका पहना हुआ था जोड़ा, मगर मैं कहूंगा बहुत अच्छा था। जिसका भी था, कंग्रेचुलेशंस टू देम। आप दुबई दैट में, वाज यू अली लुक लाइक जिशान। अ स्टार। थैंक यू। किसका था? अली जिशान का था। अली, अली, ब्यूटीफुल, वेल डन। एंड उसमें ना तुम बहुत प्यारी लग रही थी, तुम्हारे बाल, हर चीज। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चाहे तुम्हारे मेरे कपड़े हों या किसी और के हों, लोगों की तारीफ करके उनको बताना बहुत जरूरी है कि वो अच्छे लग रहे थे। या थैंक यू मैं तो शेरू, कभी ये भी दैट्स बता रियली देता हूँ कि नाइस यार ऑफ ये क्या पहन के आ गए हो। आई नो। अच्छा, आपका वैसे वैसे मॉडल्स में आपका कौन फेवरेट है जो आपको लगता है कि आपके कपड़ों को बहुत अच्छे से कैरी करता है? हुज योर लड़की, पर्सनल फेवरेट? दोनों में। लड़की में डेफिनेटली, शुरू शुरू में तो जब करती थी तो वनीजा, वनीजा जैसे कोई कपड़ा कैरी कर नहीं सकता। वनीजा तो दैट्स सो ट्रू। उसको मैं एक बुरे से बुरा भी जोड़ा बना के भेज दूं, मैं कहता बट शी विनीत नोज ये हाउ नहीं टू बिक रहा। कैरी, या She would carry it, she would own it. या And ईमान, ईमान ने मेरे बहुत ज्यादा, she was the face of my brand for a long time, ईमान अली। और उसके बाद अब तक मेरीन, अब तक, बिकॉज मेरीन चाहे अभी बहुत ही मॉडलिंग नहीं कर रही,
मगर मैं जब भी मेरीन कुछ एंड हो रहा था, फिनाले होते, मैं मेरीन को जरूर फोन करूंगा और उससे पूछूंगा प्यार से, मेरीन प्लीज कर दे यार। उसकी मियां के साथ भी मेरी दोस्ती, मैंने कहा यार प्लीज फिनाले करते, मेरे के ये आखिरी जोड़े में जान आ जाएगी। बिकॉज मॉडल जान लेके आती है, जान, इट कम्स टू लाइफ। आप बुरे या मॉडल, कोई बुरा यानी कि शक्ल का कोई बुरा नहीं होता, सर शक्ल के सारे अच्छे होते हैं। कुछ बिल्कुल। मॉडल्स बिलीव नहीं करते कि वो अच्छे हैं। जब तक आप अंदर से बिलीव ना करें ना कि आप, योर वर्थ द रिस्पेक्ट, योर वर्थ एग्जैक्टली। एवरीवन के, मुड़ मुड़ के देख मुझे, बिकॉज मैं ना सिर्फ अच्छा लुकिंग हूँ, बिकॉज मैं अच्छा इंसान भी हूँ, वो एक अच्छा मॉडल है। अब मैं मुड़ के देखने वाली चीज हूँ। ये हाँ, मुड़ कॉन्फिडेंस मुड़। वाला बड़ा। और आई थिंक ये बहुत बहुत सारे लोग इस चीज को गलत समझते हैं कि सेल्फ ऑब्सेशन है। उस तरह की बात, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बड़ा जरूरी होता है। आप आई सेल्फ थिंक उसको रिस्पेक्ट है ओवर यार भी ये, नहीं कर। सेल्फ रिस्पेक्ट है, तुम में भी है सेल्फ बहुत रिस्पेक्ट ये। है, एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो सोनिया, ग्रेट थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस, बिकॉज मैं बहुत खुश हूँ कि तुम इसमें बहुत ज्यादा ना सिर्फ फोकस कर रही हो, मगर इसके बारे में सीख भी रही हो, पढ़ भी रही हो। वो है इमोशनल एंड मेंटल वेलनेस। मैं इसके बारे में बातें करता रहता हूँ, बिकॉज मेरी बहन जो है वो, शी इज अ लाइफ कोच, वो इसके बारे में बहुत ज्यादा बातें करती हैं, मुझे बहुत सिखाती हैं, मुझे कॉन्स्टेंटली सिखा रही होती है, बढ़ा रही होती है। मगर मैंने नोट किया कि हमारे सेलिब्रिटीज एंड स्टार्स में लोग इसके बारे में बात जरूर करते हैं और अच्छी बातें ये करते हैं, बहुत अच्छी बात है कि ब्रिंग फोकस, मगर इस तरह के रोल्स लोग कम चूज करते हैं या शायद कम होते हैं। आपका पहला, अभी आपने एक रोल किया, उसके ऊपर एक सोशल मीडिया के ऊपर एक उसका फोकस था, एंड अगेन ऐसी अबाउट मेंटल तन्हाई। वेलनेस, या यस। या इट फिर वाज आपने एक ऐसी और किया तन्हाई। मेंटल वेलनेस, so tell me everything, tell me why. ऐसी तन्हाई तो इट्स इंटायरली डिफरेंट टॉपिक। वो सोशल मीडिया के जो अब्यूज है कि हम उसको किस तरह से यूज करते हैं, वो उसके ऊपर था। वो भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो कि जिसके बारे में बात करनी जरूरी है। लेकिन अभी जब हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो अभी रिसेंटली एक प्ले हुआ था जाहिद के साथ, आई थिंक लोगों को पता होगा इसके बारे में, इश्क सही नसीब के नाम से था। इट वाज अबाउट डुअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। आई मीन उसमें होता ये है कि जैसे कि मैं हूँ सोनिया, लेकिन मेरे ऊपर समटाइम्स क्या होता है, दूसरी पर्सनालिटी जो होती है वो आपके ऊपर ओवर शेडो कर लेती है। वो क्योंकि सब चीज़ें ना, हमारी पूरी बॉडी का जो फंक्शन है वो यहाँ से चल रहा होता है। ये जो हमारा ये जो थ्री, इसका मास के अंदर, जो स्कल के अंदर एक ब्रेन है ना, उसके उससे पूरी बॉडी का फंक्शन चल रहा होता है। तो उसमें ये होता है कि वो कभी कभी ऐसा होता है, कोई ट्रॉमा होता है आपकी जिंदगी में जिसका इतना इम्पैक्ट होता है आपकी लाइफ पे, तो वो आपकी लाइफ पे कहीं ना वो असर छोड़ जाता है आपके जहन पे। तो वो उसकी वो पर्सनालिटी पे वो शेडो करता है, वो उस तरह से बिहेव करने लगता है जैसे दूसरा पर्सन है। और मोस्ट प्रोबेबली वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो उनकी अपनी बनाई हुई एक शख्सियत होती है जिसके बारे में वो कर रहे थे। तो वो एक डुअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे था। उससे पहले मैंने एक प्ले किया था नाजो, जो कि स्पेशल चाइल्ड का था, जो कि नेचुरली ऐसे ही बॉर्न होते हैं। और बहुत दफा लोग उसको, जैसे कि अभी 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 रिसेंटली एक हमारे पॉलिटिशियन है जिन्होंने एक स्टेटमेंट उस पे दिया था कि ये हमारी जिंदगी में एक होता है ना, एक कर्ज है। तो मुझे बड़ा गुस्सा अजाब, आया था इस बारे में। अजाब हुआ था वर्ड। अजाब है, मुझे इतना गुस्सा है। मैंने कहा ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है और इसके बारे में लोगों को इतनी बात करने की जरूरत है। वहां पे इस तरह के कुछ इलिटरेट लोग हैं जो उसमें लेके इसको ले जाते हैं। खैर मुझे अच्छी बात ये लगी कि लोगों ने उस पे आपका ख्याल है कि वो इसके बारे में कह रहे थे या मालूम नहीं कि कौन सी सब्जेक्ट था? आई नो कि जो भी देयर वाज अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट दिस, but there is a lot of misunderstanding about this. No, he was like कि जो आप लोग हमारे काम की वजह से हमारे ऊपर अजाब आ रहा है, जिसकी वजह से ये जो रिटार्डेड बच्चे हैं ये पैदा हो रहे हैं। आई मीन दैट वाज इनसेन। अब मुझे इतना गुस्सा है इस बारे में। एनीवे, तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जिस तरह की लिटरेसी रेट इतना कम है, अवेयरनेस इतनी कम है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ, तो वहाँ हमारे यहाँ चीज़ों को समझा नहीं जाता। आपकी एक रिस्ट टूटेगी, हम उसको चेक करवाएंगे, पता लग जाएगा हड्डी टूटी हुई। एक चीज़ है जो आपको विजिबली नजर आ रही है, लेकिन मेंटल इलनेस एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर चल रहा है और किसी को नजर नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी बात यह कि लोग इसको टैबू समझते हैं, लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते कि कोई इसको कहे ओ क्यों है तुम ये? तो क्रेजी। आई थिंक उनको ये लगता है कि जब आप अपने दिमाग के बारे में बात करने लगेंगे या आप बात करने लगेंगे, मैं ऐसा पता नहीं मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ, मैं अलग रहना चाहता हूँ, या फिर मुझे इस तरह के ख्यालात आते हैं, या मैं ये सोचता हूँ, तो लोगों को शायद ये इनसिक्योरिटी है। और ये हमारी सोसाइटी की क्रिएट की भी है, क्योंकि यहाँ पर कोई बात नहीं कर सकता। कोई बात करता है उससे पहले दूसरा
इवन सेलिब्रिटीज में ये होता है कि कोई किसी ने अपनी एक ओपिनियन दिया है, दूसरी सेलिब्रिटी आके उसको ओवरशैडो करेगा, अपनी बात कर देगा कि तुमने ऐसी बात क्यों कर दी है। जैसे कि मैंने अभी कल भी एक ट्वीट किया था कि कोई एक XYZ एक्ट्रेस ने लिखा था कि भाई मुझे चुपकली से बहुत डर लगता है, तो उस पे किसी और सेलिब्रिटी ने लिखा कि भाई चुपकली से क्यों डर लगता है, हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े डरने की चीजें हैं, पेंडेमिक है हमारे यहाँ, आपस में जंग हो रही है, दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी चीजें, आप चुपकली से डर रही है। आई मीन सबकी जिंदगी के अपने फेज होते हैं, आपको ये चीजें बिल्कुल। समझने की जरूरत है। कुछ कुछ चीजें जिससे आप उससे नहीं डरते, मैं उससे डरती होंगी, हर चीज का सबके फोबियाज होते हैं अपनी लाइफ में। हमें उनको लोगों को एक्सप्रेस करने देने की जरूरत है, हम बात नहीं करने देते उन्हें, हम उनको इतना प्रेशराइज कर देते हैं और मुझे लगता है इतना शेम कर देते हैं उन्हें कि लोग कहते हैं कि नहीं नहीं शायद हमें इस बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए, वरना लोग समझेंगे कि पता नहीं मैं पागल हो गया हूँ या मैं क्रेजी हो गया हूँ या कुछ मेरे साथ ही कुछ गलत हो रहा है, मैं ही गलत हूँ। तो लोग बात ही नहीं करना चाहते, वो सेल्फ आइसोलेशन में चले जाते हैं, तो विच इज बैड। जो Which is कि very जो कि bad. वो कंडीशन उसकी वर्स्ट होती जाती है आपकी, फिर मेंटल हेल्थ की वो ट्रीटमेंट नहीं है उसका। मुझे पता क्या लगता है सोनिया, मुझे लगता है कि हम लोग सारे जो हैं, जो लोग देख भी रहे हैं, आप लोग, आई एम श्योर आप लोग भी एग्री करते होंगे। बाय द वे, आप लोग कह रहे हैं कि मैं पढ़ नहीं रहा, मैं आप सबके साथ साथ कमेंट्स पढ़ भी रहा हूँ कि मैं अगला सवाल उनसे पूछ सकूं कि आप लोग क्या पूछना चाहते हैं। जो आप इसने लोग लिखा है सारे वो प्यार फेयर ऑफ मोहब्बत स्पाइडर्स, और आपके इसने सारे लिखी जो प्यार और मोहब्बत दे रहे हैं उसका बहुत शुक्रिया। आई एम सो ग्लैड एंड आई एग्री दैट सोनिया इज ब्यूटीफुल। अगर वो खूबसूरती उसकी सिर्फ स्किन डीप नहीं है, शी इज एक्चुअली अ ब्यूटीफुल पर्सन। सोनिया, पता है हमारा मसला क्या है? हम लोग जो हैं, जैसे तुमने अगर शुक्रिया कह दिया, हम लोग कॉन्स्टेंटली समझते हैं कि जो हमारा दर्द, हमारा फेयर, जो मैं इस वक्त फील कर रहा हूँ ना, वो बेंचमार्क है। और यही बेंचमार्क है। अगर तुम इस बेंचमार्क पे नहीं आ सकते, या तुम इस बेंचमार्क पे नहीं आ सकती, तुम इस खूबसूरती पे ये नहीं आ सकते, नहीं आ सकती, यानी कि तुम्हारा फेयर जो है वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। कोई बंदा कहता है यार मुझे, और हर बंदा कहता है हर चीज का कोई वक्त होता है। तो कोई कहेगा यार ये इससे मुझे, अंधेरे से मुझे बहुत डर लग रहा है, और दूसरा बंदा कोई कहेगा यार पता क्या, जो पता है ना, तो कभी दिन के अंदर वो चीज होती है उससे भी होता है, मगर अभी तो अंधेरा है, सिर्फ अंधेरे के बारे में बात करनी है। ये सच, आई थिंक ये प्रॉब्लम्स हैं कि हम लोग कॉन्स्टेंटली जो हम लोग सोच रहे होते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द नजर आता है, वो हम समझते हैं कि वही चीज है। अब ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे इर्द गिर्द हमें जो नजर आता है वो नजर आता है इस चीजों का खौफ, मगर हमें मेंटल इलनेस, मेंटल एबिलिटी टू नॉट बी एबल टू टेक केयर ऑफ अस, वो कभी नहीं नजर आती। हमारे इतनी एब्सोल्युटली। मॉडल्स, इतने लोग हैं जो अपने आप को हर्ट कर चुके हैं, अपनी जान ले चुके हैं, जी। ना सिर्फ बुलिंग की वजह से जो सोशल मीडिया पे होती है, जो बहुत ही यस, बुरी चीज है, मगर बिल्कुल। साथ साथ एक डिप्रेशन जो अंदर होती है। मुस्कुराते हुए बंदा जिंदगी गुजारता है, एवरीवन स्माइलिंग, एवरीवन परफेक्ट, हर बंदा, आपको पता भी नहीं चलता कि इस मुस्कुराहट के पीछे, अच्छा, ऐसे मेरे बहुत कोई दफा दर्द नहीं बहुत है, दफा मगर मैं समझ गया हूँ आप क्या कह रहा हूँ। बिल्कुल। अच्छा, बहुत दफा हम ये चीज गलत समझते हैं कि बहुत दफा लोग कहते हैं ना कि ओ ये इतना रो रहा है तो ये शायद डिप्रेस्ड है। बेसिकली जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, वो अपनी चीजें एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, वो रो रहे होते हैं, लेकिन जो डिप्रेशन का पेशेंट होता है वो कभी आपको रोता हुआ नजर नहीं आएगा। ये एक बहुत मेजर एक सिम्टम है जो कि हमें समझने की जरूरत है। आप जो इंसान सबसे ज्यादा चुप रहेगा, हंस रहा होगा, मुस्कुरा रहा होगा, उसको ज्यादा एक्सप्रेशंस नहीं वो फील कर पा रहा होगा, तो वो उसके साथ कुछ गलत है, राधा उसके कि जो आपको हर चीज बता रहा है। तो डिप्रेशन जो होता है वो इस तरह की चीज होती है जब आप अंदर से डिप्रेस्ड होते हैं, ऊपर से आप कोशिश करते हैं कि मैं सबको अच्छा अच्छा लवी डवी नजर आऊं, सब मुझे एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर मैं मुंह बनाऊंगा तो कोई मुझसे बात नहीं करेगा, तो अपने आप को आप प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, बट बैक ऑफ द माइंड आप प्रेजेंट नहीं होते हैं उस सिचुएशन में। और अभी जो आप कह रहे थे ये बेंचमार्क वाली चीज कि ये एक बेंचमार्क होता है कि उतना खूबसूरत होना ही होना है, मुझे समझ नहीं आता कि ये बेंचमार्क बनाया किसने। मतलब अगर मैं ये कहती हूँ कि ये एक लेवल है, ये खूबसूरती का लेवल है, बड़ी बड़ी आंखें जो होती है वो खूबसूरत होती है, वो मेरा बेंचमार्क है, मतलब मैंने बनाया, मैंने वो खूबसूरती का स्टैंडर्ड अपने हिसाब से, वो दुनिया का नहीं है। तो कोई अगर कहता है कि गोरा रंग खूबसूरत होता है या कोई कहता है टैन खूबसूरत होता है, तो वो लोगों की अपने बनाई हुई चीज है। मुझे लगता है खूबसूरत इंसान होता है अंदर से, वो आपकी शक्ल पे आता है। खूबसूरती को आप फीचर्स से या कलर पे या किसी के बॉडी स्ट्रक्चर पे नहीं डिफाइन कर सकते। खूबसूरती एक खूबसूरत चीज है जो अंदर से आनी चाहिए, वो शक्ल पे नहीं आप उसको बेंचमार्क बना सकते। और तो वी कितने नीड टू लोग खूबसूरत अंदर अंडरस्टैंड से दिस। होते हैं। मैं कभी जाता हूँ और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसे मौके मिलते हैं कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन है नाउ PDP, वहाँ इतने टैलेंटेड बच्चे नौजवान हैं जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, जो देख नहीं सकते,
और उनके साथ मैं वक्त गुजारता हूँ, उनके साथ कोशिश करता हूँ कि महीने में एटलीस्ट एक क्लास तो जाके उनको दूं, कुछ डिजाइन सिखाऊं, उनके साथ बस वक्त गुजारूं, उनके साथ बातें करूं, कि उनकी बातें सुनूं, कि उनकी हैंड लैंग्वेज सीखूं कि वो किस तरह साइन लैंग्वेज करते हैं। और सोनिया, उनकी अंदर की खूबसूरती इतनी ज्यादा है कि मैं सोचता हूँ कि यार हम लोग के जब हमारे पास इतनी जो है चीजें, एबिलिटी टू स्पीक, टू सी, टू हियर, इतनी ज्यादा है कि हम उनको इतना ग्रांटेड लेते हैं। लोग, हम जानते नहीं कि उनकी सोल के अंदर कितनी खूबसूरती है, ना उनकी शक्लों के ऊपर, ना उनके बोलने के अंदर, ना उनकी आंखों के अंदर, पर उनके सोल के अंदर। हम बहुत कम लोगों की एक्चुअली सोल के अंदर, उनके क्या कहेंगे, सोल को उर्दू में क्या कहेंगे? सोल को आपकी रूह। रूह के अंदर, बिल्कुल। कितनी खुशी है, कितनी नमी है, क्या कहती थी वो, सैडनेस भी है, जितनी एक्सपीरियंसेस भी हैं, कितना दर्द है। आप किसी को एक्चुअली उनको हाथ थाम के उनको जानने की कोशिश करो, या मैं तो अभी भी मुझे रोना आना शुरू हो जाता है कि मैं सोचता हूँ यार, हमें अंदाजा ही नहीं है कि और लोगों के अंदर क्या क्या चीजें, स्पेशली जो हमारे जो स्पेशली एबल्ड लोग जो होते हैं, वो इतने कमाल के होते हैं। अच्छा, मेरी डॉगी अब आ गई है, आप साहब प्लीज पहली दफा आप सब जीजी से मिलना है। जीजी, ओके, What's her शी इज name? कम फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पहली दफा, पहली पहली मेरी लाइफ पे Oh, she's माय live for माय the first time. What's her name? जीजी, 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 here she Oh, is, cute. जीजी, जीजी look, hi boo boo, that's Gigi everyone, ये पहली दफा जीजी That's आई है। Gigi, the star. जी जी सर, जी सर, सुपरस्टार जीजी को मैंने सेव किया था। इसको कोई हमारे पार्क से आगे कोई लड़के जो थे इसको चोरी करके लेके जा रहे थे अबाउट 5-6 साल पहले, और Oh. और बहुत बेचारी रो रही थी, चीख रही थी, और हमने इसको सेव किया।